Hi students, once again welcome to my channel. Today we are going to see the most one part of speech. Before that I have seen that most of the students had told me that sir please tell the each part separately. So today we are in this video. Now just I want to tell you that about the most one part of the grammar. This is a basic one, but still it is very important. If you know this very well, definitely you can use your language very nicely. So let's see which topic is there. First of all, welcome to all of you and thanks for watching this video, and I hope that you will watch this video completely, fully up to the end of the video, and definitely it will be very easy for you. And please take your notes and the pen with you. Definitely it's very important, because only watching video is not very important, but this. So today's topic is the pronoun and its types. Okay friends, we know that what is the pronoun and which are the types of this, but detail in this video we will see properly. First of all, before that I request to all of you, those are watching this video, subscribe the channel and share it now. Just okay, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है उसमें जो नीचे आइकॉन दिया है सब्सक्राइब का, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फिर देन यू कैन शेयर दिस चैनल टू दिस. लेट्स ओके सी दिस वन. व्हाट इज द प्रोनाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल, pronoun is what approximately we know that a pronoun is a word which is used instead of the noun, on the place of the noun, for replacing the noun. Okay, pronoun is a word what takes the place of the noun. अब ये क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द प्रोनाउन ऑन द प्लेस ऑफ द नाउन? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई नाम को, कोई नेम को, ओके, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनीथिंग दैट वी कैन नॉट यूज रेगुलरली इन द सेम सेंटेंस. ओके, अब छोटा हुआ तो राज, राम, कुछ ये हुआ तो इट्स ओके, लेकिन ये अगर बहुत बड़ा हुआ, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, राजवर्धन, हर्षवर्धन, ऐसे बड़े बड़े नाम हुआ तो बार बार उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता है. व्हेन द नेम इज कंटिन्यूसली रिपीटिंग इन द पैराग्राफ, वी आर नॉट watching this paragraph or we don't have any idea about the other paragraph, but we just keep the word in our mind. वो बार बार अपने दिमाग में आता रहता है, तो उसकी जगह हम छोटा सा नाम यूज़ करते हैं, ही और शी और इट. ये सारे प्रोनाउन, अब देखिए प्रोनाउन इज़ वेरी शॉर्टेस्ट वन, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये भी आप ध्यान में रखना है. तो which are the types of pronouns that we see? For types of the pronoun, the first one is the personal pronoun. Second one is in that the subject of the verb or the object of the verb. Sentence के एक तो वो verb हो, subject हो सकता है या फिर object हो सकता है, ये दोनों में से होता है, तो personal pronoun will be there. Second one is the possessive pronoun. Third one is the reflexive pronoun. Fourth one is demonstrative pronouns, and next one is indefinite pronouns, reciprocal pronouns. These are the types of pronouns, and last one is the interrogative or relative pronoun. Actually these both are same words, but the function of the words are different. Interrogative का और relative जो pronoun है वो बिल्कुल एक ही है, सेम वर्ड्स आर देयर, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है. अब दोनों का फंक्शन कैसे अलग अलग होता है वो हम वीडियो में ज़रूर देखेंगे, एंड कुछ और भी प्रोनाउन के टाइप होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, बट स्टिल वी हैव टू, इट्स अवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. देन द फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज़ द पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन का सिंपल सा नाम है कि किसी पर्सन के लिए जो यूज़ होता है पर्सनली, वो पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, अब किसी पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो ही, शी, इट, ये जनरल होते हैं तो वही यूज़ करते हैं स्पेशली, तो वो हो गया पर्सनल प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट होगा तो ही, शी, इट हम यूज़ करते हैं, आई और यू, ही, शी, इट, वी, दे. these are the verbs specially, these are the pronouns are specially used as the personal pronoun, because this all the words, all the pronouns are indicate the person. किसी इंसान को वो, किसी के इंसान या किसी नेम को वो पर्टिकुलरली पर्सनली रेफर करते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द पर्सनल प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल, Lisa likes cat,
अभी लीज़ा जो है ये लड़की है, तो इसके लिए हम ऊपर से ये उनमें से कोई तो एक वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ से आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अब इनमें से कोई तो एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो लीज़ा लड़की है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ शी। ओके, और दूसरा जो है शी हैज़ 4 cats, ये से हमने कर लिया। तो पहले वाले सेंटेंस में जो है लीज़ा जो है वो नेम है, नाउन है, तो उसकी जगह हमने यूज़ किया है प्रोनाउन, शी एज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट। और दूसरा एग्जाम्पल हम वहाँ पे देखेंगे, शर्मा इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड प्लेयर। अब यहाँ पे पहला इसमें हमने देखा है कि शर्मा ये जो है ही इज़ अ गुड टीचर, द शर्मा इज़ अ नेम ऑन द प्लेस, यहाँ पे हमने नाम यूज़ किया, नेम यूज़ किया। और सेकंड इसमें ही इज़ अ प्रोनाउन ऑफ दिस वर्ड्स, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो कैसे, अगर ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट होगा तो पता चल जाएगा, बट ऑब्जेक्ट में किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो एग्जाम्पल उसमें देखेंगे, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। ये स्पेशली आपको थर्ड पर्सन इसकी केस दिखाई देगी, केस होती है फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो इसमें स्पेशली आपको थर्ड केस के ही वर्ड्स मिलेंगे। और वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल लीज़ा लाइक हर कैट, लाइक्स अ कैट। अभी कैट जो है दिस इज़ अ नेम, बट ये यहाँ पे लीज़ा जो हमने यूज़ किया है ये नेम है, नाउन है। ओके, और लाइक जो है वो वर्ब है, वर्ब का लाइक हो गया, और लाइक जो वर्ब है इसके लिए कैट यूज़ किया। ठीक है, कैट यूज़ करता है, लाइक वूज कैट्स। तो सेकेंड सेंटेंस में हमने जो देखा है कि शी लाइक टू स्ट्रोक देम, हाँ, तो दैट हियर देम इज यूज एज अ प्रोनाउन अगेन, दिस प्रोनाउन इज यूज फॉर द कैट्स, स्ट्रोक इज ऑब्जेक्ट अगेन, और देम इज यूज फॉर द कैट्स, स्ट्रोक देम, तो ये वापस से ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से उसे होता है, स्पेशली आप जब पैसिव वॉइस करते हो तो दैट टाइम डेफिनेटली वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस वी हैव टू यूज। तो किस तरह के प्रोनाउंस होते हैं, द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने आपको कहा कि केस होती है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर आई होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा मी लास्ट में, यू होगा तो उसका यू ही रहेगा, ही होगा तो हिम होगा, बाय हिम हो जाएगा, शी, हर, इट ही होगा। एंड अगर दिस सपोज इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल का हो जाएगा, वी का होगा अस, यू विल टर्न इनटू द यू ओनली and they will turn into the them. This will the change into the pronouns when they are coming from the subject on the place of object. If when they are using as an object for the verb, they will change like this. You have to write this table into the notes. Definitely it will be helpful you. Second type is the possessive pronouns. Which are the possessive pronouns? Let's see the definition first. That will be very helpful. Possessive pronouns are used to talk about the things that belong to the people. The words mine, yours, his, hers, yours, ours, then theirs are the possessive pronouns. ये जो सारे possessive pronouns, these are the pronouns which talk about the person or the belong to the person. जो चीज़ें किसी एक से belong करती हैं तो वो सारे possessive pronouns है। स्पेशली ये सेकंड फॉर्म होता है। ओके, सेकंड केस में आते हैं, थर्ड केस जैसे मैंने देखा था कि वो सेकंड केस में आते हैं। माइन, योर्स, हीज, हर्स, दिस विल बी फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे माइन इज माई सेल्फ, दिस शोइंग द बुक इज बिलोंग टू मी, देयरफॉर माइन इज देयर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू लॉस्ट योर्स बुक टॉम, तो उससे बिलोंग करने वाली चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं। ओके, दिस इज अ, अगर वो सिंगुलर होते तो आई का हो जाएगा, आई और मी का होगा माइन, यू विल टर्न इनटू योर्स, ही, हिम विल टर्न इनटू द हिज, और शी, हर का हो जाएगा हर्स, ये सिंगुलर हुए। प्लूरल में अगर होता है तो वी, अर्स का हो जाएगा अवर्स, और यू का हो जाएगा योर्स, दे, देम का हो जाएगा देयर्स। इट विल बी द चेंज इनटू द possessive pronouns from singular and the plural form when we are using them as a object. स्पेशली पॉजेसिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट में ही यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट में यूज़ नहीं होते हैं। ओके, इन द क्वेश्चन मे बी पॉसिबल दे कैन यूज़, बट इन द सेंटेंसेस दे आर नॉट यूज इन टू द दिस वर्ड्स। ओके, सब्जेक्ट की जगह वो यूज़ नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज़ होंगे।
Third one is the reflexive pronouns. Reflexive pronouns are words that refer to the noun or the pronoun that is the subject of the verb. Okay, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली इनमें सेल्फ लगा के आता है, ये ध्यान में रखना है. बाकी डेफिनेशन कुछ भी भूल जाओ, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ या सेल्व्स ये वर्ड आता है. इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. दीज आर द रिफ्लेक्टिव बिकॉज दे रिफ्लेक्ट. ओके, किसके बारे में? माई सेल्फ आई एम टॉकिंग, तो रिफ्लेक्शन हो गया. तो ये रिफ्लेक्ट करता है किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी उसे रिफ्लेक्ट करता है. देयरफॉर दे आर कॉलिंग एज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ये बात ध्यान में रखना है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो पर्सन खुद उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. देयरफॉर दे आर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए. तो व्हाट एग्जाम्पल होगा उसका? माई ब्रो बिल्ट दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ. John was looking at himself in the mirror. This is a reflexive pronouns. Some examples are there. Because be careful not to cut yourself with a knife. ये रिफ्लेक्स किया उधर. Our cat washes itself after the every meal. We break the cake by ourselves. आपको बहुत सारे हर इसमें एग्जाम्पल आपको दिखाई गए कि योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स वहाँ पे यूज़ होते हैं. देन इफ इट इज़ सिंगुलर एंड इट इज़ अ प्लूरल, हाउ टू चेंज टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? तो आई का हो जाएगा, आई एज अ सब्जेक्ट का होगा, माई सेल्फ, मी का होगा माई सेल्फ, यूर विल बी टर्न इन टू द योर सेल्फ, ही विल टर्न इन टू द हिम सेल्फ, ही विल टर्न इन टू द हिम सेल्फ, शी इज टर्न इन टू द हर सेल्फ एंड इट विल टर्न इन टू द इट सेल्फ. If they are into the plural form, then we will ourself, us will ourself again, or you will turn into the change into the yourself, they will change into the themselves, them will themselves. अभी ध्यान में रखना है कि जहाँ पे आप सिंगुलर होगा, ओके, वर्ड अगर सिंगुलर होता है तो वहाँ सेल्फ लगता है, सेल्फ. और अगर वो प्लूरल फॉर्म में आता है तो उसे हम सेल्व्स लगाते हैं, सेल्व्स, SELVES. जैसे कि यहाँ पे आप फर्क देख सकते हो, सेल्फ एंड हियर अ सेल्व्स. ओके, जो भी कुछ होता है तो उसे LVS लगाते हैं, ये ध्यान में रखना है, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है. द थर्ड प्रोनाउन इज देयर, सॉरी फोर्थ प्रोनाउन इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब इसके नाम से पता चलता है कि व्हाट इज अ डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिग्दर्शन करना या फिर ऐसी दिशा दर्शन करना, किसी को डायरेक्शन देना. तो जैसे कुछ वर्ड होते हैं वो हमको डिसाइड करके दिशा बताते हैं कि हियर देयर, इधर होगा उधर होगा, तो डिसाइड करके वो एक डायरेक्शन हम देते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी नाम के लिए. तो दैट इज अ डायरेक्टिव, दैट डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल उसके डेफिनेशन से पता चलेगा आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर पॉइंटिंग आउट द थिंग्स. किसी चीज़ को पॉइंटिंग करना, जिसको डायरेक्ट करना, वो चीज़ के लिए अगर कोई वर्ड्स यूज होते हैं पॉइंटिंग करना कि वेयर इज़ माई बुक, इट इज़ देयर. तो दिस, दैट, these, those, these are the pronouns, these are the demonstrative pronouns. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, these are my pets, these are sheep, but those are goats. Here these also this is used for the sheep. शिप एक ऐसा वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ कि दिस यहाँ पे होता है, दिस शिप ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म एक ही होते हैं. ओके, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, जैसे हेयर का नहीं होता, शिप का भी नहीं होता. गोट्स वी कैन से, दोज आर सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर दिस. दिस इज माई डेस्क, दिस इज द माइंस हाउस. ओके, और दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, दैट्स माई मदर्स कैट. ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. फिफ्थ टाइप का प्रोनाउन होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट, जो डेफिनेट है ही नहीं, विच इज़ नॉट कन्फर्म, विच इज़ नॉट डेफिनेट अबाउट द क्वांटिटी और द क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन. तो उसमें क्या होंगे कि एन इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर डायरेक्टली टू द एनी अदर वर्ड. किसी वर्ड के लिए वो डायरेक्ट रेफर नहीं करते हैं. तो मोस्ट इनडेफिनेट प्रोनाउंस एक्सप्रेस ही आइडिया
ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में वो रेफर करते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होती। किसके बारे में? वो डेफिनेट नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज़ वेलकम एट द मीटिंग, सबका वेलकम है, लेकिन किसका? एवरीबडी, फिक्स कोई नहीं है, डेफिनेटली किसी के बारे में नहीं है। ओके, इट इज़ इनडेफिनेट। मेनी प्रीफर देयर कॉफ़ी विथ शुगर, मेनी, ये मेनी कौन है? तो पर्टिकुलर कोई नहीं, डेफिनेटली कोई नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉफ़ी शुगर के विद शुगर प्रेफर देयर कॉफ़ी विद शुगर, उससे प्रेफर करते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। These are does anybody, anyone, such words can be used as a indefinite pronouns. Everybody, many, anybody, few, these are the words. कुछ एग्जाम्पल उसमें और देखने ज़रूरी होंगे। ओके, कैन यू फाइंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस? अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? वन नेवर नोज। अब यहाँ पे इनमें आपको ढूंढना है कि विच इज़ अ इंडेफिनेट प्रोनाउन, कि वन नेवर, वन इज़ नॉट, मेनी, यहाँ पे अनदर, देन बोथ, बोथ भी यहाँ पे समझ में आता, हु इज़ द बोथ मीन्स फिक्स नहीं कोई, सेवरल, दीज आर द इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये वाले सारे एग्जाम्पल्स उसमें हो गए। ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, बोथ, ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, फ्यू, मेनी, मोस्ट, नाइदर, नोबडी, नो वन, नो वन, अदर, सेवरल, सम, समबडी, समवन एंड सच। ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज आर द इनडेफिनेट प्रोनाउंस। उनका कोई डेफिनेट किसी को रेफर नहीं करते। 6 नंबर इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि व्हेन reciprocal pronouns express a relationship between the individual indicate in the plural forms. Okay, individual को एक plural form में वो indicate करते हैं। How? Two boys fought with each other. दो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश जोड़ते हैं। Okay, दो individual जो pronoun होते हैं उनको जोड़ते हैं। Two boys, उनको each other, one another, ये से कुछ words उसमें होते हैं। ईच अदर इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। स्पेशली इसमें दो ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, वन अनदर और ईच अदर। ओके, द बॉयज फॉट विद वन अनदर एंड वन अनदर। तो इसमें ईच अदर, वन अनदर ऐसे कुछ वर्ड्स, 2-3 ही वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। एंड द लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और द रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव, इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है उसमें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत बार हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि प्रश्नार्थक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन का होता है कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब इंट्रोगेटिव मतलब व्हेन द वर्ड्स आर यूजिंग द फंक्शन एज आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, एंड रिलेटिव प्रोनाउन आर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लॉजेज और टू वर्ड्स। स्पेशली टू क्लॉज का ही होता है। टू क्लॉज में जब रिलेशन वो रेफर करेगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यूज टू एज द क्वेश्चन। ओके, जैसे कि हु इज दैट, विच, व्हेन, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु यूज ऑल माई पेपर्स, किसने यूज़ किया, ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा हमने ये पूछा, हु इज मॉम टॉकिंग टू, मम्मी किससे बात कर रही थी, ये क्वेश्चन पूछा है। दिस इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हु आर दोज पीपल, ये सारे क्वेश्चन है। बट उसके एग्जाम्पल है, हुज पेन इज दिस, ये भी क्वेश्चन है। अगेन द क्वेश्चंस। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग सच वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, WH वर्ड्स, फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, दे आर दैट टाइम और इंट्रोगेटिव वर्ड्स। लेकिन उसको प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं कि जब वो क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और कुछ अदर प्रोनाउंस भी हैं। दीज आर ऑल, बोथ, लिटिल, मोस्ट, एनी, ईच, आइदर, लेस, सेवरल, फ्यू, एवरी, नाइदर, फ्यूअर, सम, मच, अनदर, इनफ, मेनी, वन। ये भी आप अच्छी तरह से यूज़ कर लीजिए, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये 8 टाइप के जो प्रोनाउंस है, these 8 type pronouns you have to keep in your brain and you can use them properly. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you for all of you and it's very useful for you
डेफिनेटली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो। और वॉचिंग के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। डेफिनेटली द नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी डायरेक्टली come to your accounts, come to your directly YouTube channel. Bye all of you, will come to the next topic. Bye, thank you.